Here, thank you very much. You are most welcome here in the class. Today, the subject of my class is note making and abstraction. Actually, this is one of the most important part of your unseen passage, and this try to find out the understanding power of students, that how much capability a student has to understand the English language. So, this question is the second question of reading section, and along with it, we see that the students, those who attempt it properly in a proper format, get 10 marks out of 10. But it is very much important for you to know what is note making. Actually, the passage of 400 to 500 has been given to you to read and to make notes of it. Generally, you make the notes of your other subjects after reading the topic, after reading the paragraph, after reading the passage, after reading a page or 2 page or 3 page. So, in this way, you make the notes of it. You make notes of your own understanding, and you understand it well, that after one or two words writing or of a one line, just in the form of a hint, you write the notes, and such note as you have made, now after your reading, when you get a time to revise your chapter, at that time you just see the notes, and that note becomes very helpful for you. And whenever you go through such points, such hints, such sign or such words, you one by one in a proper order get the topic clear, and you understand well, you remember well that this is the main point of my topic, which I have made the notes. In such a way, this is the power of your own understanding, which gives you the clear cut idea. Now, just you see the board. I have already written here note making and abstraction. Abstraction, that is the summary writing. Whatever you have read in a passage of 400 to 500 words, you have made note on it. You have to write a title, you have to write abbreviations, short forms of some terminologies or some points. So, in that way, it is a skill. Just you can see, it is a skill to stiff chaff from the grain. Now, separation, the husk from the grain. जैसे आप भूसे से अनाज को अलग करते हैं, जैसे आप अन्य चीज़ों से किसी चीज़ को सेपरेट करते हैं, जो मूल्यवान वस्तु होती है उसको आप सेपरेट करते हैं, ठीक उसी तरीके से यह एक ढेर से आपको कुछ मेन पॉइंट्स बाहर निकालने होते हैं। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं, तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि नोट मेकिंग एक बहुत अच्छी कला है,
जिसमें हम एक किसी इंग्लिश के पैसेज को कितना अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उतने ही अच्छे तरीके से हम एक नोट बना सकते हैं। उस नोट का फॉर्मेट होता है। फ़िलहाल एक बार और चलते हैं इस पर। तो ग्रेन टू समराइज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हम समराइज़ करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारी एक निश्चित होती है, किसी टॉपिक पे लिखा गया रहता है, तो उसको हम एक समराइज़ करते हैं, एक छोटे से में लिखते हैं, 100 या 80 वर्ड्स में लिखते हैं। टू कंडेंस अनवाइल्डली मैटर इनटू अ कोहेरेंट यूनिट, जो इधर उधर उसमें कम से कम 5 या 4 पैराग्राफ्स होते हैं। तो उन 5 और 4 पैराग्राफ्स को हम अपने आप में मिक्सअप करते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट बी रिलेटेड टू द सेकेंड और थर्ड वन और द लास्ट वन, एंड द मैटर्स फाउंड स्केटर्ड हियर एंड देयर। एक सर्टेन तरीके से संभवतः मैटर हमको नहीं मिलता है, कभी कभी हमको एक तरीके का मैटर मिलता है जिसको आप उसको एक प्रॉपर चैनल में सेट करते हैं, जिससे कि हमको क्रमवाइज दिखाई देता है या प्रॉपर आर्डर में दिखाई देता है, क्रॉनिकल आर्डर में दिखाई देता है। तो वो तो हमको अपने आप से करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं, गुड नोट्स आर बेटर सब्स्टिट्यूट्स फॉर मोनोटोनस एंड टाइम कंज्यूमिंग टेक्स्ट। तो टाइम कंज्यूमिंग टेक्स्ट है, जैसे कि कोई भारी भरकम या बड़े पैराग्राफ को न पढ़ के आपके उस छोटे से समरी को पढ़ता है, जिससे कि उसका एक क्लियर कट आइडिया बाहर आती है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, नोट मेकिंग हेल्प्स इन द बैटलफील्ड ऑफ एग्जामिनेशन एज दैट ऑफ लाइफ। तो बैटलफील्ड ऑफ एग्जामिनेशन में आपका ये सहयोग करता ही करता है, और पूरे ज़िंदगी में भी ये काम आता है, क्योंकि यह एक तरीका बड़ा अच्छा है जिससे कि हम किसी भी चीज़ को एब्रिज्ड कर सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में किसी बड़े फिगर को छोटा बना देते हैं, छोटे फिगर को बड़ा बना देते हैं, एलेबरेट कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से एलेबरेटेड आइडिया को एक कंसाइज आइडिया में, एक छोटे आइडिया में कैसे लिखा जाए, इसके लिए यह एक जानकारी होती है। तो आपसे मेरा यही कहना है कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट कर लें। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से कर लेते हैं। हम देखते हैं कि अभी आपने उस पर व्याख्या किया है, इसका स्क्रीनशॉट लिया है। अब हमारे सामने ये आता है कि हम ये समस्याओं को जन्म क्यों लें। वाई शुड वी मेक नोट्स, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो फर्स्ट, द नोट मेकिंग is a part of the board examination, that is in 11th standard and 12th standard both. It is asked for 10 marks, therefore it is necessary, because the board wants to check the understanding power of the student, that how much power, how much knowledge a student has for English. So it is a justification and test of your English knowledge. Therefore, as out of 80 marks, 10 marks, 8 marks it is given to you. As right now it is of 8 marks, 4 plus 4. So the second thing is that why do we make notes. So you see here that we make notes to record all the important or key points. All the important or key points. We make records of all the important and key points. तो की पॉइंट्स क्या है, जो हमारे हाईलाइटिंग वर्ड्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं,
the words which fulfill the sense of the whole passage or of whole line or of a whole paragraph. कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चे बहुत कुछ लिख देते हैं लेकिन वो मेन पॉइंट नहीं लिखते हैं जिनसे उनके क्वेश्चंस को कंप्लीट माना जाता है. समटाइम्स दे मिस इट और they don't have a proper guess or estimation, that they don't apply their senses whether it is important or not. So they should focus on some important points without which the paragraph or the passage or the topic will be incomplete. तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट दी है, की वर्ड्स है ऑफ अ टेक्स्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. फ्यूचर रेफरेंस के लिए अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द फ्यूचर रेफरेंस. एक्चुअली एज you may be the student of science, you may be the student of commerce, you may be the student of arts, and in coming future you will either prepare for your IIT, for JEE competitions, for NEET competitions, and after that you may go further, you may flourish yourself, you may develop yourself, you may have been doing engineering, you may have been doing medical degree or other courses such as BA, BCom, BA, BSc, etc. And ultimately you will find yourself preparing for jobs, for higher jobs or for A grade, B grade, C grade, whatever. During that study it will be very much important for you to make a concise note and a diary for your general knowledge, for your subjective knowledge, for your optional papers, for your main examinations, even for your interviews, etc. In these matters it becomes very much important for you. Therefore it has a great importance regarding your future. It will not only enhance and develop your IQ level, your logistic level, your reasoning level, but also it will enhance you the power of taking decisions among you. So after watching a video, after watching a film, movies, after watching an episode, or after reading a paragraph, after reading a book, you will have the power to analyze the theme, the summary, and the objective of such piece or such video, such movie. So it is one of the most important thing related to your life. Therefore it can be identified into the three parts. The first one, that is the main points, some main points should be. Then after condense information, that is the also the main information that is very necessary for you. Or the third one, that is organize it in a systematic way. Anything that is found in haphazard, इधर उधर बिखरा हुआ मिल रहा है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखा गया. तो यू आर सपोज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हैव अ स्नैपशॉट और टेक इट डाउन माय डियर. नाउ हम ये देखते हैं दैट वी हैव टू फोकस ऑन सम अदर पॉइंट्स. तो फोकस करने के लिए हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं उन पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि हमें और कौन कौन से बिंदुओं पर और कौन कौन से पॉइंट्स पर इसका ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में ज़रूरी होता है. एक्चुअली जब बच्चों के सामने यह नोट मेकिंग के प्रोसेस आते हैं, जब वो पैसेज आता है तो तमाम बच्चे इसे छोड़ देते हैं. दे नेवर अटेम्प्ट इट. कहते हैं ये तो समझ में ही नहीं आया, बड़ा कठिन टॉपिक है. वास्तव में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ऑलवेज यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस ऑफ इट. कठिनाइयों से तो भागने से जीवन चलता नहीं, कठिनाइयों का तो हमेशा स्वागत करना पड़ता है.
इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत होती है। तो हम देखते हैं, फोकस ऑन सम अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण और भी पॉइंट्स हैं जिस पर हमें बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एज टू मेक नोट्स, जब हम नोट बनाने के जाते हैं तो ऐसे समय में वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो हमारा पहला पॉइंट है, देख लीजिए आप कि व्हाट इज़ द पैसेज अबाउट। पैसेज आपका किस पर लिखा हुआ है, उसका क्या मेन पॉइंट हो सकता है, किसके आधार पर लिखा हुआ है, या किसके संबंध में लिखा हुआ है, क्या है, व्हाट इज़ द मेन टॉपिक, ये किस टॉपिक पर लिखा हुआ है। जैसे आप तमाम प्रकार के टॉपिक से अभिभूत होते हैं, जानकारी रहती है आपको, लेकिन उस टॉपिक का उस पर नाम नहीं लिखा रहता। एक का ऐसे ही सामान्य तौर से पैसेज दिया गया रहता है, खास करके मान लीजिए जानवरों के आधार पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ मनुष्यों के नेचर को लेकर के कुछ लिखा गया हो, कुछ शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लिखा गया हो। तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट पॉइंट्स, दैट इज़ द यूनिवर्सल सब्जेक्ट। ऑलवेज इट कैरीज, नोट मेकिंग्स कैरीज द यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स। This is not very normal, this is not a very common subject they pick up. Sometimes as suppose the dowry system, the education system. Now basically the unseen passages belong to a level of the students. जैसे अभी आप टेररिस्ट को देख करके कर सकते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पर बात कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, इन्हांस करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं। तो ऐसे में टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हमारा काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेक केयर ऑफ इट दैट ऑन व्हाट टॉपिक वी आर बीन द पैसेज हैव बीन गिवन टू अस। इस पर इट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट फर्स्ट। द सेकंड थिंग, which detail, points, opinion and conclusion drawn about the topic are essential। तो आपको क्या है, इसेंशियल मतलब बड़ा आवश्यक है, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट विच डिटेल्स, मतलब क्या डिटेल है इसका, इसके डिटेल्स बनाने चाहिए। यानी कि इसके लिए हमको कुछ और भी काम करने पड़ेंगे, ये इतना ही तक सीमित नहीं है। तो ये डिटेल्स हैं, पॉइंट्स हमको नोट करने होते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। और कंक्लूजन हमको देना चाहिए, एक तरह का निष्कर्ष भी निकालना चाहिए कि आखिर में इसमें क्या हो सकता है, क्या है। और फिर ड्रॉन अबाउट द टॉपिक इसेंशियल, ये तो होता है। तीसरे पॉइंट पर अगर हम ध्यान देते हैं तो कहते हैं व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स आर सब पार्ट्स। ऐसे मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या, इसके साथ तो हमेशा होता है कि किसी मेन पॉइंट्स के सपोर्ट में, कुछ मेन पॉइंट्स को बताने के रूप में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सब डिविजन्स होते हैं, जिनको उनको बताना ज़रूरी होता है। तो इसके सपोर्ट में भी हमको कुछ लिखना होता है। तुरंत आप इसका एक शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर देखिए, मैंने एक बनाया है, नोट मेकिंग रिक्वायर्स अ मेथोडिकल एक्शन प्लान। मेथोडिकल एक्शन प्लान, जैसे कुछ मेथड्स होते हैं इसके, और जब तक इस प्लानिंग के तहत आप नोट मेकिंग नहीं करेंगे, यू कैन नॉट डू इट बेटर। तो फिर वन बाय वन इस पर स्ट्रेस करते हैं, फोकस करते हैं। आप पहले इसका देख लें वन बाय वन, उसके बाद आप इसका शॉट ले लेंगे या फिर नोट कर लेंगे, जो भी आपको ईजी लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइल रीडिंग द पैसेज व्हाट शुड बी डन, हमको क्या करना चाहिए जब हम पैसेज को पढ़ रहे होते हैं, हमारे सामने पैसेज होता है, तो हमको क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। रीडिंग द पैसेज, ट्राई टू ग्रैस्प द जिस्ट ऑफ द पैसेज। जिस्ट का मतलब जो होता है कि एक समरी टाइप उसको हमको बनाना चाहिए, कि जब भी हम करते हैं तो अंडरलाइन कर लें, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें पेंसिल से या पेन से हम अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद ये दिस विल ब्रिंग यू नियरर टू द थीम। जो आप ये जिस्ट बनाते हैं, जो आपको आप ये अपना एक मेन अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, अंडरलाइन करते हैं,
तो आपको एक जिस्ट देता है, यानी कि आपको समरी राइटिंग के लिए बड़ी आसानी होती है, आपको समझने में भी आसानी होती है कि हमको अंडरलाइन करने के बाद क्या हमको समझ में आ रहा है। फिर तीसरे पॉइंट पर देखते हैं, ट्राई टू लोकेट अलाइड आइडियाज़। अलाइड का मतलब है रिलेटेड आइडियाज़, जो मेन पॉइंट से या जो चीज़ों से हमको एक आइडिया, रिलेटेड आइडियाज़ मिलती हैं, उसको भी हमें अंडरलाइन करनी चाहिए और उस पर पॉइंट्स देने चाहिए। दे विल फॉर्म सब पॉइंट्स, यानी कि ये सब पॉइंट्स का देता है हमको, एक छोटे पॉइंट के लिए एक तरीका देता है। उसके बाद इफ़ अलाइड आइडियाज़ हैव मोर आइडियाज़ दे विल फॉर्म सब पॉइंट्स। अगर अलाइड आइडिया जब आप पाते हैं तो एक रिलेटेड आइडिया जो होती है वो ज़्यादा है, कई तरह की चीज़ों को रिलेट करके बनाया गया है, तो ऐसे में हमें सब पॉइंट के बाद सब पॉइंट्स के लिए कुछ उस रिलेटेड आइडियाज़ को उसके साथ जोड़ने पड़ते हैं, तो हमको एक सब पॉइंट्स मिलता है। ऑलवेज चूज़ अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर नोट मेकिंग। पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो अभी आगे चल करके मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा कि आप इसमें कैसे कैसे क्या लिखें, तो उस फॉर्मेट को भी आपको जानना पड़ेगा। तो इसकी फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, बिना फॉर्मेट के आपको नंबर नहीं था। बोर्ड ये बार बार कहता है, द बोर्ड ऑलवेज सजेस्ट टू द एग्जामिनर्स दैट इफ़ द नोट मेकिंग हैज़ नॉट बीन डन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट प्लीज़ पुट द जीरो एंड कट द होल नोट मेकिंग। तो इस तरह से इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। फॉर्मेट के आधार पर ही नोट बनाया जाता है। जैसे नोटिस का फॉर्मेट होता है कि आप नोटिस को बॉक्स में लिखते हैं और उसका जो फॉर्मेट होता है उसको फॉलो करते हैं। लेटर का फॉर्मेट होता है कि उसको भी आप एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं, कि एड्रेस लिखते हैं, रिसीवर से एड्रेस देते हैं, डेट देते हैं, रिसीवर से एड्रेस देते हैं, सैल्यूटेशन देते हैं, सब्जेक्ट देते हैं, बॉडी ऑफ लेटर लिखते हैं, उसके बाद सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो इस तरह से वो लेटर राइटिंग का होता है। लेकिन अब आपको लेटर राइटिंग तो है नहीं, क्योंकि अब आपको तो राइटिंग सेक्शन में नोटिस है, पोस्टर है, इनविटेशन है, एडवर्टीज़मेंट है, ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल है, स्पीच है, डिबेट हैं, तो रिपोर्ट राइटिंग है। तो ये चीज़ें आपको राइटिंग सेक्शन में आती हैं। उसी तरीके से ये रीडिंग सेक्शन में आता है, लेकिन इसमें नोट मेकिंग कराया जाता है। ये दूसरे पैसेज की बात मैं कर रहा हूँ। पहले पैसेज में तो आपको कुछ एमसीक्यू होते हैं और आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन्स में उसके आंसर देने होते हैं। लेकिन ये जो पैसेज होता है, सेकंड पैसेज होता है, ये थोड़े लॉजिकल बेस पे होता है, डिस्कर्सिव भी होता है। इस पर एक रिपोर्ट आती है जिस पर आपको एक नोट मेकिंग तैयार करना पड़ता है। यूज़ रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशन है तो जो आपने एब्रिविएशन, जैसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन है, BBC करके होता है, इस तरह से आपको रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस देने होते हैं। ऐसे एब्रिविएशन देखें जो रिकॉग्नाइज हों, जो प्रचलित हों, जो जानकारी हो जिसकी, या फिर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नेम होते हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो एटलीस्ट हमको शॉर्ट फॉर्म के लिए कुछ शब्दों को सेलेक्ट करना होता है उस पैराग्राफ से, पैसेज से। रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस, कुछ सिंबल्स भी हम यूज़ कर लेते हैं। ऐसे कुछ प्रचलित सिंबल्स हैं, जैसे डेल्टा का सिंबल है, स्टार का सिंबल है, एंड का सिंबल है, एक्सेट्रा। कंप्लीट सेंटेंस इज नॉट नीडेड। आपको कभी भी अपने नोट मेकिंग में जो फॉर्मेट में आपने पॉइंट्स लिखने होते हैं वो सेंटेंस में नहीं लिखने होते हैं, इसका विशेष ध्यान होना चाहिए। दैट शुड बी। डू नॉट इंक्लूड एग्जाम्पल्स। प्लीज़ डू नॉट इंक्लूड examples in your note making whenever you are making notes of it. And also do not include figurative speech। जैसे लच्छेदार या फिगरेटिव स्पीच नहीं, उसको आप सिंपल लैंग्वेज में नोट करने चाहिए आपको। तो फिर इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर देख लें। देखिए यहाँ पे आई हैव जस्ट, दैट इज़ द मेथोडिकल एक्शन प्लान है। तो अब प्रिपेयर नोट्स पे हम आते हैं कि आपने अभी मेथोडिकल प्लान से देख लिया, अब हाउ टू प्रिपेयर नोट्स हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी अब हमें पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ प्रिकॉशंस ऑफ इट, दैट हाउ शुड वी मेक नोट्स। आई विल गिव यू द फॉर्मेट आफ्टर few minutes, just you have to wait at it. Now first one, prepare notes using phrases only।
केवल आपको फ्रेज लिखने होते हैं जो आप नोट मेकिंग बनाते हैं, उसमें कभी नेवर यूज़ कंप्लीट सेंटेंस, नेवर यूज़ कंप्लीट सेंटेंस, आपको कंप्लीट सेंटेंस कभी नहीं यूज़ करना है, कभी भी नहीं। कंप्लीट सेंटेंस आप अपने नोट मेकिंग में कभी नहीं, नेवर यूज़ द कंप्लीट सेंटेंस इन योर नोट मेकिंग। नेक्स्ट देखते हैं द टॉपिक सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, माने हर एक पैराग्राफ का अपना एक मेन टॉपिक होता है। इफ़ द होल पैसेज belongs to 4 paragraphs, then all 4 paragraphs have different main topics। हर एक पैराग्राफ अपना अलग अलग मेन टॉपिक्स के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मेन टॉपिक होता है, लेकिन वो मेन टॉपिक सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक से, एक सबसे टॉप रैंक के मेन टॉपिक से अटैच होते हैं। तो जस्ट लिसन इट दैट द टॉपिक सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ इज़ द मेन पॉइंट, वह मेन पॉइंट होता है। एंड आइडियाज़ एफ्लिक्टेड मतलब अलाइड आइडियाज़, जो उससे संबंधित कुछ विचारधाराएं होती, कुछ आइडियाज़ होती हैं, टू इट आर सब पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा 1 or more एफ्लिक्टेड आइडियाज़ डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट, जो उसके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। नाउ इन द पैराग्राफ दैट बिकम्स सब पॉइंट्स। लेकिन आगे चलते हैं, ईच सब पॉइंट्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एफ्लिक्टेड आइडियाज़ हैं या जो अलाइड आइडियाज़ हैं, ईच सब टॉपिक हैज़ सब टॉपिक, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई बड़ा इनलार्ज करके दिया हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पूरे पैराग्राफ में आपको पूरे पैसेज में आपको 1 या 2 पैराग्राफ में सब पॉइंट्स आपको मिलते हों, ठीक है। तो उस पर आते हैं, मे आर मे नॉट हैव सप्लीमेंट्री आइडियाज़, माने एफ्लिक्टेड आइडियाज़ में भी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्री आइडिया होते हैं जो डिपेंडेड आइडियाज़ होती हैं, जिनको हम सब टॉपिक में लिखते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ फाउंड इन ईच ऑलमोस्ट ईच पैराग्राफ। तो फिर विच बिकम्स सब पॉइंट्स, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा इस तरह से 4th पॉइंट आया है, प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट टाइटल। एप्रोप्रिएट टाइटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, कि आपने जो पूरा पैसेज का ये नोट मेकिंग किया है या फिर समरी राइटिंग किया है, तो उसका एक मेन हेडिंग होता है, मेन टॉपिक होता है। तो वह मेन हेडिंग क्या है? एप्रोप्रिएट टाइटल। एप्रोप्रिएट टाइटल का मतलब एक उचित शीर्षक उसका देना पड़ता है आपको। यू हैव टू गिव एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोट्स और द समरी। कहीं भी आपको लिख देते हैं, नोट्स बनाने के ऊपर भी लिख देते हैं, या फिर जब समरी लिखते हैं तो समरी में भी लिख देते हैं। इसके अलावा आप इंक्लूड अ मिनिमम ऑफ 4 to 6 डिस्टिंक्टली डिफरेंट रिकॉग्नाइजेबल शॉर्ट फॉर्म्स। रिकॉग्नाइजेबल शॉर्ट फॉर्म्स मतलब परिचित जो शॉर्ट फॉर्म है, जो प्रचलित शॉर्ट फॉर्म है, उसको आपको लिखना होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 to 6, 4 या 6, लेकिन वो ये नहीं कि आपने एक शब्द का बनाया तो एक ही कुछ 4-5 जगह लिख दिया आपने, ऐसा नहीं है। आपने पैसेज में कई बार उस शब्द को पाया है, तो आप एक ही जगह लिखेंगे, इसलिए अलग अलग शब्दों का आपका एब्रिविएशंस होगा। और वो अगर कोई रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस नहीं मिलता है तो भी किसी बड़े शब्द को आप स्वयं शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, पहले के 3 या 4 लेटर्स को लेकर के। ऐसे आपने है कंफर्टेबल को बनाना है, तो आपको कंफर्टेबल को, सपोज करिए कंफर्टेबल वर्ड है, तो कंफर्टेबल COMFORTABLE, ये इतना बड़ा सम है, ठीक है। तो आपको COMF डॉट कर दीजिए। ये आपका जब ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा,
ये कंफर्टेबल का शॉर्ट फॉर्म है, COMF है। तो आपको ये एक रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशन बन गया, लेकिन इसका आपको अलग से फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना पड़ता है। जब आप नोट मेकिंग कर लेने के बाद यहाँ बॉक्स बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और ये फुल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ COMF किया और यहाँ कंफर्टेबल पूरा लिख दिया, तो एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं जिसमें आपका वर्ड्स आ जाता है। इस तरह से यू हैव टू मेक 4 to 6 शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रिविएशंस ऑफ द वर्ड्स इन द नोट्स। अगला है कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द नोट्स मीनिंगफुली। अब आपको एक प्रॉपर चैनल में उन्हीं शब्दों का, जैसे आप एक तरह से वर्बल इनपुट समझ लें कि दैट इज़ ए काइंड ऑफ वर्बल इनपुट गिवन टू यू टू राइट अ समरी। तो यू हैव टू मेक द प्रॉपर सेंटेंस इन अ प्रॉपर चैनल, a complete sentence you have to write for the summary, and keeping all the words and phrases whatever you have noted in the note making, taking it in a complete format, you have to write summary in about 80 to 100 words। 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको लिखना होता है। as you have been informed, if you have been informed to write summary in 80 words, then you have to follow this one, or 100 words, then you have to do according to the instructions given in the board। नेक्स्ट है वही आपका राइट द समरी अब्स्ट्रैक्ट इन अ कंप्लीट सेंटेंस। अब यहाँ शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने हैं, अब यहाँ आपको आइडियाज़ छोटे छोटे आइडियाज़ में नहीं देने हैं, अब उन छोटे आइडियाज़ को एलेबोरेट करना है, एक बड़ा बनाना है, पैसेज बनाना है, तो इस तरह से उसमें करना है। इसका भी अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम आपको इसमें से अब बताएंगे कि आपका वो नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। तो आई विल जस्ट गोइंग टू मेक अ फॉर्मेट ऑफ द नोटिस, जस्ट यू हैव अ स्नैपशॉट ऑफ इट। टेक स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तो फिर अब हम चलें। तो आपने ये देखा है कि इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है, इंडेंटेशन ऑफ नोट्स। ये नोट्स का इंडेंटेशन है। इसमें हमको करना क्या रहता है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेडिंग इन द लेफ्ट साइड कॉर्नर of the page, in the left side corner of the page we write heading. Heading should be written in block letters, a capital letter. Block letter means capital letter. Then after reading the first paragraph, as I have read the first paragraph, तो यहाँ क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ का मेन पॉइंट है, फर्स्ट पैराग्राफ का ये मेन पॉइंट है। इस मेन पॉइंट के अंतर्गत 3 सब पॉइंट्स हमको मिले हैं, इसलिए हमने इसको 3 सब पॉइंट्स में नोट कर दिया है कि इन द सपोर्ट ऑफ, यही अलाइड आइडिया हैं, एफ्लिक्टेड आइडिया हैं, ठीक है, यही अलाइड आइडिया हैं और एफ्लिक्टेड आइडिया हैं कि इस मेन पॉइंट के सपोर्ट में हमें कौन कौन से पॉइंट्स और देने चाहिए जो हमारा ये मेन पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, कंप्लीट करेगा, सेंस इसका कंप्लीट करेगा। तो ये सब पॉइंट्स सबको 1 2 3 मिले। अब देखिए ये 1 के नीचे हमने 2 लिखा है और इस सब के साथ एक साथ लिखा है, तो यही इसका फॉर्मेट है कि सब पॉइंट जो हैं एक ऐसे मेन के नीचे होते हैं, मेन के बगल में होते हैं। फिर दूसरा पैराग्राफ मैंने उठाया, उसका मेन पॉइंट क्या है, तो उसके भी हमको 3 सब पॉइंट्स मिले हैं। ज़रा इसका तुरंत शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एट वंस। तो चलते हैं अब तीसरा, जैसे थर्ड पैराग्राफ हमको मिलता है, तो मैंने थर्ड पैराग्राफ का मेन पॉइंट लिखा है। मेन पॉइंट ये थर्ड पैराग्राफ में आया है। थर्ड पैराग्राफ में पहला सब पॉइंट आया है। अब सपोज करिए कि इसमें आपके सब पॉइंट्स मिल गए हैं, एफ्लिक्टेड आइडियाज़, मोर कनेक्टिंग आइडियाज़ आपको और मिल गए हैं, तो कंसर्निंग आइडियाज़ आपको ज़्यादा मिल गए हैं, तो इसलिए अब इसका नंबर आप कैसे डालेंगे, तो इस यहाँ अब आप यहाँ लिखेंगे 1.1 काम करेंगे, सब पॉइंट आप यहाँ लिख लेंगे। फिर इसका दूसरा मिला है आपको, तो दूसरा सब पॉइंट लिखेंगे, सब पॉइंट मिल गया आपको। फिर आपको अब नहीं मिला, तो इसलिए अब आप
तीसरे का सेकंड पार्ट में आ जाइए। इसका सब पॉइंट आपने लिखा, इसमें आपने तीसरा पाया तो उसका भी सब पॉइंट लिखा। 3 से कम नहीं हो, 3 से ज़्यादा हो, चौथा भी आपने पा लिया तो ये सब पॉइंट, ये 1 सॉरी ऐसे नहीं होता है, इसका नंबर तो दूसरे तरीके से होता है। इसका नंबर ऐसे सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से किया। इसके बाद यही क्रम आपको फोर्थ पैराग्राफ में चलेगा। आप इसको देख लीजिए, तुरंत स्नैपशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने इसी तरह से फोर्थ पॉइंट पाया, फोर्थ का भी आपने मेन पॉइंट लिखा, मेन पॉइंट, और ये मेन पॉइंट के बाद आपका पहला फोर्थ वन सब पॉइंट हो गया, दूसरा सब पॉइंट हुआ, ये थर्ड सब पॉइंट हुआ। माना इसमें भी आपको दो सब डिविजन्स मिल गए, तो 4.3.1 आपका सब पॉइंट हो गया। 4.3.2 आपका सब पॉइंट हो गया। अब आपका फिफ्थ पैराग्राफ मान लीजिए मिला, तो मेन पॉइंट आपका फिफ्थ पैराग्राफ का हो गया, और फिर आपने सब डिवीज़न किया, सब पॉइंट मिला आपको, फिर आपको दूसरा सब पॉइंट मिला, आपको इतना ही, दो ही मिले। अब आपका पैराग्राफ मान लीजिए ख़त्म हो गया, आप इसे बंद कर दिए। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए तुरंत। अब आप आगे में इस फिफ्थ पॉइंट के नीचे आपने एक बॉक्स बनाया, इसमें आपने जो एब्रिविएशंस यूज़ किया है, जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, उसके लिए है एब्रिविएशंस, फुल फॉर्म्स। तो इस तरह से आपने पहला वर्ड लिखा, दूसरा वर्ड लिखा, थर्ड लिखा, फोर्थ लिखा, फिफ्थ लिखा, सिक्स्थ लिखा। तो ये 6 एब्रिविएशंस लिखे आपने, और उनके सबके आपने फुल फॉर्म्स लिखा, जैसा मैंने आपको बताया था। से ठीक है, CONFORMATION, कन्फर्मेशन, ठीक है, या कंफर्टेबल, जो भी आपने किया उसको आपने मान लीजिए वहाँ लिख दिया। इसी तरह से आपने किया। इसके बाद आप अब इसके नीचे समरी लिखते हैं। अब इसके नीचे आप समरी लिखते हैं। समरी आपने लिखा, तो उस समरी को यू हैव टू राइट इन अ प्रॉपर मैनर। अब आपको हिंट के तौर पे कि जैसे मैंने आई हैव टॉट यू, तो आफ्टर दिस व्हाट विल यू स्टडी इन एडिशन, दैट इज़ द रेफरेंस बुक, व्हाट वुड बी द रेफरेंस बुक फॉर यू टू note, for the note making, that is very essential for you. CBSE has also given it in its NCERT book. Especially I would like to tell you the last paragraph of last portions of 11th class textbook, that is रेफरेंस बुक में आप कौन सा पढ़ेंगे, इसके लिए जिसमें आपको समरी राइटिंग का भी ज्ञान दिया गया है,
जिसमें आपको नोट मेकिंग के बारे में भी थोड़ा खुल करके बताया गया है, और वहाँ एक पैसेज भी दिया गया है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हॉर्नबिल, हार्नबिल हैं, हार्नबिल आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, तो इसका आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हार्नबिल का हम इसमें सॉल्यूशन पा सकते हैं। इसी के साथ अब मैं इस क्लास को ओवर करता हूँ। We will meet next day, and on behalf of it you will be provided a homework to solve it. Very quickly you will get it. Up to that, thank you my dear. Goodbye. Have a nice day. Okay, bye bye.